Alright, guys, welcome to Happily Whatever After. I am your host Karan. And I am your co-host Shokhi. Thank you guys for listening to us. You have been An amazing. I think we thrive on you, like because you guys listen. Because you guys listen, we talk. We talk like we have been so happy that we are able to share our learnings, our stories, our drama, our rat race that we have been into, and what are the learnings that we have got into. The best part is you guys are enjoying it, and we ourselves are enjoying it. So keep on listening. Let's go to another episode of Happily Whatever After. Yes. तो अब तक आपने देखा इस कहानी में मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और शोखी कहीं ना कहीं अपने पुराने ख्यालात में जो 2010 में थे वहां जा चुकी थी, जहां पे वो अपनी मॉम के एक्सीडेंट से मेरे एक्सीडेंट को कनेक्ट कर रही थी। बिकॉज बिल्कुल सेम एक्सीडेंट था, हेड इंजरी थी और उसी बीच में कैसे फैमिली एक अंडर करंट शोखी के पास करती है और शोखी उस अंडर करंट से बाहर निकलती है और फिर सारे लोगों को फाइट करती है। एंड देन उस बीच में दूसरी करण की एक्स आ जाती है और उसमें शोखी को पता चलता है कि ये तो अलग ही अच्छी लड़की है। I'm doing good, guys. Like Like slow clap for Karan for becoming the dramatic 90s narrator that I am. So guys, this is called mirroring. Yeah. This is a phenomena called mirroring. Couples who live together start looking like each other, start talking like each other. Oh my god. And basically just merge into one big personality. Yeah, that is true, guys. I think mirroring, मतलब it's a very natural, scientifically proven phenomena. Yeah. It happens with all couples. Yeah. You cannot avoid it. So coming back to not so funny drama. Not so funny that was drama happening in our life. Yeah. So basically हमने जब लास्ट बात की थी तो हम उस क्लिफ हैंगर पे थे कि करण की एक्स करण से हॉस्पिटल में मिलने आई थी और फिर वो मुझसे भी मिलके गई थी and basically the days were very hard for me to pass, but we somehow managed because my only goal was to get Karan better and get him home. And finally the day arrived जहाँ पे हमने सारा सब कुछ रैप अप किया हॉस्पिटल से and we were to come back home. Yeah. And we came home in the night because इतना time लग गया in hospital formalities and discharge papers and all of those things that we came home at 11:30 in the night. Yeah. It was me, Karan's best friend and mom. Yeah. And I was hoping that ये सब कुछ हो जाएगा, हम घर पे जाके आराम से शांति से सो पाएंगे. Karan will be in his bed for the first time, in his own bed for the first time after accident. So it would be very comfortable for him, better than a hospital bed and more. घर पे आके obviously इंसान को अच्छा लगता है, like the person home feels vibe. like feels like they'll get Back better. home, yeah. They'll get better sooner. The recovery was supposed to start. Yeah. But उसी रिकवरी मोड की शुरुआत में ही हम एक झगड़े में जाते हैं. शो आप ये बताइए कि जब हम हॉस्पिटल से बाहर निकले और आप घर पहुंचे तो लफड़ा क्या हुआ था? कैसे लफड़ा हुआ? क्या हुआ उस लफड़े में? बेसिकली लफड़ा वही हुआ है जो आज तक जीवन में ओवर एंड ओवर होता है कि लोग क्या कहेंगे. ओह अच्छा, तो आपका ये कहना है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यस, बिल्कुल सही. तो हम लोग पहुंचे रात को 11:30 बजे घर एंड अब इतने दिनों से तो मैं हॉस्पिटल में सो रही थी और एक ही रूम में सो रही थी करण के साथ. तो आई एंड करण वर बोथ एक्सपेक्टिंग कि अभी करण जब सोएगा रात को एंड ही इज अ पेशेंट, उसको रात को कुछ लगेगा तो कोई तो उसके साथ सोना चाहिए, राइट, इन द सेम रूम. सो आई विल स्लीप इन द सेम रूम बिकॉज ही इज अनवेल. But at 11:30 in the night, there was a fiasco at home because mom was against the fact of the opinion that एक रूम में कैसे सो सकते हो तुम, तुम्हारी शादी नहीं हुई है. And I was really like short circuit हो गया था मेरे दिमाग में. मेरा भी अभी भी बज रहा है. Like I was ready. उस रात को 11:30 बजे I was ready to tell Karan, like तू
तेरा देख ले, मैं जा रही है. I was really to that point कि मैं क्या CHU कि मैं वहाँ बैठी हूँ और मैंने इतना सब कुछ किया only to be told कि अब वो लड़का घर आ गया ना, अब तू निकल. अब you can't be in the same room. That was the kind of moment that happened and I was really feeling bad and my head was paining and मैं बोल रहा था कि यार क्या और करण लिटरली अपना सर पकड़ के बोल रहा था, अरे यार मम्मी यार. It was so funny and at the same time it was so irritating because I was trying to ask her कि then who's going to sleep in his room? Are you going to sleep in his room? She's like no, we'll keep the doors open and if he needs he will call. I was like, what are you talking about? Are you crazy? ये बुखार नहीं हुआ है नॉर्मल कोई छोटा मोटा कि तुम्हारे बेटे को ऐसा लगेगा कि मम्मी तो वो आ जाएगी मम्मी उठ के. रात को कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट डे ही इज बैक होम, ही इज सो मच इन पेन, ही इज नॉट एबल टू. ऐसे भी उसने हमको नहीं बताया कि उसको क्या चाहिए होता है. ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जो अपना खुद का दर्द अकेले सह रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो why are you being like this? But there was no logical answer to it. There was actually a 45-minute discussion on the point कि सबको किसी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा कि तुम लोग की शादी नहीं और तुम लोग सेम रूम में रह रहे हो. और फिर उसके बाद पता चला कि एक कराटेदार जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो मेरे साथ सोएगा. आई वाज लाइक ठीक है और ये वो भी भी सहन लेंगे. और एंड आई वाज लिटरली रेडी टू वॉक आउट एट दैट नाइट. लाइक आई वाज रियली कि भाड़ में जाए, रात को 2 बजे मैं घर पे जा सकती हूँ तो 11:30 तो कोई बड़ी बात नहीं हुई. तू रहे अब अपने घर में, मैं जा रही हूँ घर. बट देयर वाज जस्ट वन थिंग स्टॉपिंग मी एंड कीपिंग मी देयर वाज माय था लव फॉर करण. थैंक यू शो, आई लव कि यू. मैं इसको छोड़ दिया तो पता नहीं इसको क्या होगा. तो आई वाज जस्ट देयर कि ठीक है, ओके, व्हाटएवर इट इज, लेट इट बी. एंड यू नो व्हाट गाइस, अल्टीमेटली आई कुड नॉट be there for Karan. Yeah. Because ये सारे लफड़े में बीच में कूदा करण का दोस्त और उसने बोला कि अरे शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगा करण के साथ. And I was like वापस से लाइक तुमको कुछ पता नहीं है, आधी रोटी में दाल लेने चले आते हो तुम, कोई मतलब नहीं है तुमको. But then he jumped in between, he slept with Karan and all night he was snoring away because he was sleeping. And because he was snoring, Karan could not sleep, and sleep was very important because he had a head injury. So, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं, कहानी की शिक्षा हम बाद में बताएंगे. तो शो, कैन यू इलाबोरेट, क्या आप इलाबोरेट कर सकते हैं कि उस रात की क्या वारदातें थी, क्या उस हुआ? रात में एक और वारदात जो हुई, जो आज तक सॉल्व ना हो पाई और शायद इस लाइफ टाइम में सॉल्व नहीं होगी, वो ये थी कि उस रात को फिर मुझे मम्मी के रूम में सुलाया गया. और रात को 2 बजे मम्मी मेरे को जबरदस्ती उठा के कॉन्फ्रंटेशन कर रही है कि बिकॉज ऑफ यू माई सन वॉज नॉट एबल टू टॉक टू मी एंड he was angry at me 1 year ago. All of this happened. I did not say anything. I was like, what are we discussing right now and why are we going down that road? And okay, let's go down that. So I was also at some point of time कि ठीक है, इस बारे में बात करनी है ना आपको, ठीक है तो कर लेते ना बात. तो क्यों बात करी थी आपने? मैं तो, मेरे पापा तो आए थे तभी, तो आपने क्यों बात करी थी दहेज की, क्यों करा था? सो वो तो फिर ऐसा हुआ कि ऐसे रग उठाई गई और सब कुछ ब्रश अंडर द कार्पेट कर दिया गया और ये माना ही नहीं गया कि डाउरी की कोई बात हुई थी. इट वाज जस्ट साफ जीरो, लाइक पलटू, एकदम पलटू नंबर 1 कि नो नथिंग हैपेंड. मैंने तो तेरे को ये बोला ही नहीं था. कब बोला? क्या गैस लाइटिंग हुई है मतलब. I think I'm loving this episode. जो ए क्लास नंबर का Amazon पे आप जाओगे, एक बहुत अच्छा लाइटर होता है जो करण ने मुझे दिलाया है, जो ना बार-बार चार्ज हो जाता है, ठीक है. वैसा गैस लाइटर बनी थी मम्मी उस रात को. क्या गैस लाइटिंग हुई थी मेरी कि क्या तुम्हें कुछ एमनीशिया हो गया है? ऐसे तो कोई दहेज का द भी नहीं बोला मैंने. कहाँ से आया दहेज? कौन दहेज? कैसा दहेज? सोना? मुझे तो कोई सोना नहीं चाहिए. कौन सा सोना? कैसा सोना? Nothing was accepted or said. So there was a confrontation happening where I was being told that
because of you my son was not talking to me for 3-4 months, but at the same time when I was trying to tell her because of you I had to lose you were like my mother and I had to lose him, and do you understand what is happening, and I'm grateful. And I remember actually saying it out loud to her ki I love you and I wanted you in my life and I wanted and you are the reason that Karan is in my life. Yeah. You are the reason that Karan is this person that I love. Yeah. But at the end of the day gaslighting मेरी हो रही थी. Yeah. I can feel you, Sho. I can feel you. So I was just like उस दिन रात को मैं सोई नहीं थी, नहीं सोई थी और मुझे बस आँख लगी थी सुबह शायद 8 साढ़े 8 बजे टाइप आँख लगी थी. And I remember she woke up and she just went to the office the next day. No, at 10 no, a.m. no. And I was woken up by mom Yeah. to say that Karan बुला रहे थे को. So I was firstly my first instinct was what did I say? So क्योंकि Karan was not able to sleep all night long, he was in tremendous pain, and the only thing that used to make him feel better was my hand on his head like that. अभी बीच ने हाथ रखा है. Oh my God. वाह वाह वाह. So he was so angry at his best friend कि साइड में पड़े पड़े कराटे ले रहा था सारा. सुबह सुबह उसने सिर्फ मम्मी को अपनी ये बोला कि जाओ शोकी को लेके आओ. So I went to him and I was just putting my hand on his head and I was like कि तू भी नहीं सोया मैं भी नहीं सोई बेटा, ठीक है, we are sailing on the same boat. But you know that night I was fully like कि मेरा हो गया, मैं करण को मौत के मुंह से लेके आ गई. करण को अब मैंने घर पहुंचा दिया सेफ एंड साउंड. अब मैं स्लोली बैक अवे करके गायब हो जाना चाहती हूँ करण की लाइफ से, क्योंकि गाइस एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई थी, क्लियर लाइक क्रिस्टल क्लियर हो गई थी, मैं करण की फैमिली के साथ नहीं रह सकती, नहीं सर्वाइव कर सकती. तो however hard it was in my mind, the resolve was just getting stronger and stronger कि मुझे ऐसे धीरे धीरे से पतली गली से करण की लाइफ से एग्जिट मारने का है, क्योंकि ये ना हो पाई. मतलब मैं ये करण कभी ये फैमिली से दूर नहीं जाएगा, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, पर द हार्ड फैक्ट इज कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये फैमिली के साथ, जब मैं फुल आउटसाइडर हूँ, मेरी गैसलाइटिंग होती है और मैं काम के लिए हूँ, बट देन व्हेन इट कम्स टू कमिंग बैक होम एंड टेकिंग केयर ऑफ करण, तो नाउ यू आर आउट, नाउ यू आर नॉट अलाउड टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो इट जस्ट बिकेम लाइक अ डिलेमा कि नहीं अभी मेरे से नहीं हो पाएगा. एंड आई वॉज रियली वॉन्टिंग टू गो, लाइक 80% ऑफ मी वॉज आउट ऑफ द डोर कि मैं अब बस उठ के चली जाऊंगी, मैं ऑफिस जाऊंगी और उसके बाद मैं वापस नहीं आने वाली हूँ. बट another one of my very good friends, when I shared what happened last night, was very kind enough to tell me that Saxena sir told me this, that Shoki, right now everything else in your life is a non-issue. The only focus and one point focus, जैसे घोड़े के ऐसे साइड में वो लगे हुए थे ना, वैसे तेरे को देखना है, तेरे को सिर्फ करण की रिकवरी पे ध्यान देना है, because you also know that there is nobody else taking care of him the way you are taking care of him. So just make everything else out of focus and just focus on Karan and stay. So I was like, okay, fine, I will stay. There is no other way to do this. Yeah. So another one, almost 10-15 days went by with similar things happening day in and day out, but I was like no, focus on Karan, and we won the battle eventually. The very next day I started sleeping in the same room as Karan, because she realized that Karan did not sleep all night and there was not really any another way around. There is no solution to it. And I think there were a lot of like those kind of undercurrents that used to happen कि हॉस्पिटल में करण मम्मी कुछ खिलाने की कोशिश करती थी, जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती थी, तो वो नहीं खाता था, और फिर करण ने किया ये सारा कलेश, पता है सारा कलेशी कंचा मैं हूँ, कलेशी कंचा ये, ठीक है. और फिर मैं उसको बोलती थी ना, थोड़ी देर बाद उसको सर पे हाथ वाथ रख के प्यार व्यार करके मैं उसको बोलती थी कि खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले यार, प्लीज खा ले यार, खा ले, तो खा लेता था. तो अब
ऑब्वियसली विलन तो मैं ही बनूंगी ना यार, मम्मी खिला रही तो तुम नहीं खा रहे हो, फिर मैंने बोला कि खा ले तो तूने खा लिया, तो फिर कलेश तो असली में इसी ने कराया है ना। या सारा कलेश इसी का है, इसने शुरू से बाउंड्री नहीं बनाई है, इसी ने शुरू से रायते फैलाए हैं, सारा यही है। मैं रायतेबाज मैं कलेशी कंचा रायतेबाज कलेशी कंचा। रायतेबाज रायता चंद। Yeah, and then the day comes when everything is going as it is supposed to go, and then कहाँ जा रहा तू? मेरे को पता नहीं. Go ahead. तो उसके बाद फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया जहाँ पे मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अब आई विल लूज माई जॉब इफ आई डोंट शो अप ऑन टाइम और डू मच अराउंड इट, सो आई हैड टू गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ। एंड बाय देन आई थिंक रोशनी वॉज ऑल्सो लाइक कि सुनो हो गया, मतलब इतनी सती सावित्री मत बनो तुम, अपना ध्यान रखो, अपनी लाइफ का ध्यान रखो, निकलो वहाँ से। सो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, निकलो वहाँ से। आई वाज लाइक यस रोशनी यू आर राइट एज यूजुअल। सो मैं निकलती हूँ यहाँ से, मैं वापस आ जाऊँगी। एंड रोशनी वाज ऑल्सो घर, जब मैं घर गई तो रोशनी वाज ऑल्सो लाइक हश थैंक गॉड ये लड़की वापस आ गई, वन पीस में वापस आई है। एंड आई थिंक रोशनी को समझ में आ चुका था कि अब इसका नहीं हो पाएगा। नाउ शी हैज ड्रॉन अ क्लियर लाइन कि ये इधर होगा या उधर होगा टाइप थिंग। सो वो हो चुका था उसके दिमाग में, उसको समझ में आ चुका था कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद ये स्लोली ऐसा होने लगा कि ना मैं थोड़ा कम जाने लगी करण के घर। लाइक पहले मैं रोज जाती थी, फिर मैं धीरे धीरे करके हफ्ते में एक बार जाने लगी। और जितना ऐसा हो रहा था ना उतना आई डोंट नो इफ यू डिड यू रियलाइज दैट आई वाज ट्राइंग टू स्नीक आउट ऑफ योर लाइफ। या तभी तो मैंने बोला था उसके बाद कैसे? So can you continue this where Yeah. you were feeling? So what happened is slowly and steadily पहले शोकी मेरे साथ रहने लगी, 15-20 दिन बिताए, मेरा ख्याल रखा, सब कुछ किया। एंड देन जैसे हम घर पहुंचे तो एक हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते तक वो घर पे रही। फिर उसका बेसिकली जॉब की शुरुआत हो गई एंड शी वांटेड टू फोकस ऑन हरसेल्फ एंड आई वाज लाइक यू गो फोकस। आई आल्सो स्टार्टेड बिकमिंग healthier. I was able to walk, I was able to talk, I was able to balance myself, I was eating healthy, I was relaxing myself, I was He was still in a lot of pain. yeah. अभी भी उसको वो दिन की सिर्फ 3 क्रोसिन ही मिलती थी और वो and the pain lasted around 3 months. Yeah, 3 months and after that within this 3 months 2-2.5 महीने में मैंने रियलाइज कर दिया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और शोकी धीरे धीरे जा चुकी थी, मतलब शी वॉज टेकिंग अ लिटिल स्टेप बैक विद इन अ मंथ। पहले डेली आना चालू किया, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 दिन, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन, फिर वीकेंड पे टेक्निकली जब बात होती वीकेंड पे भी आती थी और हाँ हेलो करके 10-15 मिनट में निकल जाती थी। सो देन आई वाज लाइक के डूड देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एंड शी इज गोइंग अवे फ्रॉम माई लाइफ। सो यू गेट दिस हंच इन योर लाइफ एंड you are of this opinion that what is happening, you try to decode like what is happening into your life, what is she up to। and पहली बात तो ये था कि मैं एक्सीडेंट से बाहर जा चुका था, मैंने एक एंजल का मतलब बोलते ना कि दर्शन कर लिया था, एंजल का दर्शन जो मेरी बीवी थी। The more you are saying angel, मुझे ना ताहिर शाह का गाना आता है। एंजल mankind. Angel. So let me not call you an angel. That's very a cliche. Love of my life, I'll call it. I found the love of my life. She was my better half. She took care of me. We actually sort of found each other. I was of the opinion that कि यार जो भी हुआ ठीक है, मैं इसको मना लेता हूँ। एंड देन आई टोल्ड हर शो आजा शाम में आ चलते हैं। एक मेरे ख्याल से 3-4 दिन हुए थे। करण याद है मैंने इतने सारे जाल बताए हैं तुम्हें तुम्हारे लोगों को। गाइस इतने जाल जो बिछाए थे करण ने, फिर से एक जाल फेंका। खिलाड़ियों का खिलाड़ी करण ने फिर से एक जाल फेंका। क्या था जाल बताओ। she was not coming, so let me put this, she was not coming for a week or 2। मैं बोला ठीक है तेरे को जो करना है कर। she was busy with some project or something। मैं बोला ठीक है no problem। then all of a sudden मैं बोला शो तो एक काम कर, तू आज आजा अपन चलते हैं। आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट, मेरे को ऐसा मन हुआ कि मैं घर के बाहर निकल रहा था। दैट वॉज द
I think after 3 months I wanted to step out of my house. जाल मैं बोला शो ठीक है, अब हो गया, अब मैं ठीक लग रहा है, अब तू एक काम कर, तू आ जा, मेरे को पिज्जा खाने का मन हो रहा है, अपन ना डोमिनोज का पिज्जा खाएंगे, लेट्स गो आउट ऑन अ डेट. एंड देन वो आ गए. और मैं उस दिन डिसाइड करके आई थी कि मैं ना करण को बोल दूंगी कि थैंक्स बट नो थैंक्स, हमसे ना हो पाई, तो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लाइफ, जिंदा हो तुम, मौत के मुंह से बाहर आ चुकी हो, बट ये जो भी हो रहा है तुम्हारे आसपास, गैस लाइटिंग नहीं करवा सकती मैं अपनी, तो आई विल बी आउट ऑफ योर लाइफ नाउ. और मैं आई डोमिनोज एंड ऑल. करण को ना एक बहुत अच्छे से आज तक मतलब राइट दिस मोमेंट तक ये पता है कि करण हैज दिस इफेक्ट ऑन दैट. करण जब मेरे सामने होता है या मुझसे कुछ मांगता है या मुझसे कुछ बोलता है ना, तो मैं आई एम रेंडर्ड इनएक्टिव. मतलब करण को पता है कि वो इतनी हूर की परी है, हूर का परा है, कि मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊंगी इसको देख के, और ना वो अपनी बात मनवा लेगा, उसको भी पता है. तो वो पपी आइज बना के या कैसे तो भी करके उसका जाल हमेशा मेरे ऊपर बैठ ही जाता है. तो उस दिन करण ने ना ऐसे ही सेम चीज निकाली कि आई हैव समथिंग टू टॉक टू यू. सो आई वाज आल्सो लाइक आई आल्सो हैव समथिंग टू टॉक टू यू. और हम लोग डोमिनोज में बैठे हैं, ऐसे पिज्जा आ रहे हैं, फिर हम ऑरिगेनो मांग रहे हैं, फिर हम चिली फ्लेक्स मांग रहे हैं, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह. एंड देन इट केम टू कि मैंने बोला मैं बोलूँ कि मेरे को क्या बात करेंगे. तो करण इज लाइक कि नहीं मैं बोलता हूँ. इट वाज सो फिल्मी. आई शुड हैव नोन. करण बोलता है कि सो लेट्स गेट मैरिड नाउ. आई वाज लाइक one more time I was like I was laughing and she was crying. I was like कि Karan, how are we going to do this? So Karan's reply is fast. I was like what? तू लंगड़ा है, तेरे उंगली कट गई है, तेरे को चलते नहीं बन रहा, तेरा दिमाग सही नहीं है, और तेरे को शादी करनी है फास्ट. Like wow, like fast. Fast was his answer. He's like कि अभी मई में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हम जून जुलाई में, अगस्त में हम सारी प्रेप चालू कर देते हैं और जितनी जल्दी डेट हो सके वो निकाल लेते हैं. आई वाज लाइक करण बट वेट, आई विल नॉट बी एबल टू लिव विद योर फैमिली. आई सेड इट, ओके, आई सेड इट आउट लाउड. तो करण मुझे बोलता है कि डू यू रिमेंबर व्हाट डिड यू से टू मी? No, you say. I don't remember. Please go ahead. See, why don't you remember? Can you also say that? हाँ, मतलब मेरी उस समय की जो मेमोरीज है, they are all like blurry memories till today. But भाई साहब को जल्दी शादी करनी थी यार. Let's get married fast. मतलब याद नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, क्या हुआ था, but let's get married fast, okay? So तो मैंने उस दिन बोला करण को कि नहीं हो पाएगा मेरे से. I have realized this very nicely now. तो you know what he's saying? He said कि yeah, I saw that and I realized it. But don't worry, I'll manage. And I'm like, Karan, this is not an easy task to say or do. Don't worry, I'll manage. बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा ना कि you can just get up and tell your parents कि I'm not going to be there anymore. And I know that you cannot do that, and I know that you're the only family member who's earning and stuff like that, and mom only has you, and I don't want to be the person who breaks up a family, so I don't want to do this. And Karan is like, no, why worried, अपन करते ना. Till today he does this. ऐसे मेरे को ऐसे पकड़ता है और ऐसे बोलता है, अरे तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, अपन करते ना. और कुछ नहीं करते अपन. नहीं अपन ने किया, बहुत कुछ किया. उसके बाद रायते फैले, और भी रायते फैले, बहुत रायते फैले. और ऐसी हालत में ना, ऐसे सब कुछ में करण इज लाइक कि मेरे को करने का है अभी, ये तो कैसे भी करके करने का है, प्लीज शादी तो करने की मेरे को. एंड आई वाज पुल्ड इनटू इट बिकॉज करण ने जाल बिछाया था, तो मैं तो फंसी गई. तो
मेरे पापा भी खुश हो गए एकदम कि अच्छा करण ऐसा बोल रहा है, तो मैं आ जाता हूँ एकदम पापा ऐसे दूसरे दिन बस पकड़ के आ गए जैसे कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ये उनका सगा बेटा है, ठीक है। और आ गए देखने एकदम कि करण ठीक हुई है। करण के लिए, करण को पापा की दवाइयाँ काफी काम आई थी। हमने Thank you, Papa. अर्निका एंड ऑल दैट, ही डज होम्योपैथी ऑन द साइड, सो ही सेंट करण की दवाइयाँ, तो करण को बहुत हेल्प हुई थी पेन मैनेजमेंट में उससे। तो करण वाज फुल्ली लाइक कि अरे मेरा पापा आ गया, और पापा वाज आल्सो लाइक अरे मेरा बेटा ठीक हो गया। एंड पापा वापस गए, उन्होंने 2 सेकंड में डेट निकाल दी, 1 दिसंबर 2016 की डेट निकल आई। I was like, yo! Karan was like, and one more time. And one more time I did am that. the Karan. He was fully like कि एक बार और मैंने लड़की को फंसा लिया है, और अब ये कभी भी मतलब अब उस पॉइंट पे ना हम उस टॉक्सिक लेवल पे पहुंच चुके थे कि पुश एंड पुल वाली रिलेशनशिप, लाइक वी वर जैनिस एंड चैंडलर Yeah. बाय दैट। So I became his Janice and he was not ready to. No, sorry, he was my Janice. I was not able to let him go. So finally, इस पॉइंट पे आ गए थे हम लोग, हमारी शादी की सारी डेट वेट निकल आई। एंड दिस टाइम अराउंड गाइस, करण वाज डिटरमाइंड टू नॉट मेक अ मिस्टेक। एक मिनट, let me laugh like a child. आप करती हो? I just like- Janice. So, but Karan was determined this time to not do anything wrong. He came, he really like took over. Yeah. This time around शादी का शो भी उसने अपनी फैमिली से नहीं बोलने दिया, ठीक है। He was going to manage everything. Like he was coming to me with Indore, meeting all the relatives. मेरा इतना बड़ा खानदान करण से मिला है। करण चुपचाप आया है, अकेले आया है, और उसने कुछ सेटिंग नहीं लगाई है, कुछ इधर उधर नहीं किया है। He really showed up for me. Like he cleaned up all of his problems that were there before to A, make me फसाओ, and B, to make me see that I will change the situations that have happened, and secondly I will make everything okay. And I was also, obviously I think I was also in a toxic relationship with mom, that I really wanted her, Yeah. but I used to get that kind of behavior from time to time. Mm-hmm. But I did really want to I wanted to have her in my life, Yeah. because I missed the relationship that I used to have with her, and I think you could see that, Yeah. I and could. which is why you were cashing in on it कि कर लेगी ये कुछ No, तो it कर was ही not लेगी। cashing on. See, there were two things to look at here. Is why I wanted to get married was A, as I told you earlier, that I saw you and there was some spark that initiated this discussion that now it's the time to get married because it has been there. Now people know you have been there, and that was there. Apart from it, the relationship, all the sheer understanding that my mom had given me, or the surety that she had given me after the discussion that night you happened. and mom had some discussion Yeah, about so शादी। yeah, we had a discussion and she told me that ki, don't worry, I have spoken to Shoki on this. We had discussed and I'm sorry for it. The brushing under the carpet also happened with me, and that ki ho gaya hai, theek hai, let's take it forward. So मिट्टी पाओ, जो बोलते हैं कि let's go ahead. And that sort of gave me, and she promised me that things will be okay and you do what you wanted to do in life. So that gave me a confidence, and it sort of made me move towards the positive of getting married. So those were the two things which happened, and I was pretty sure that कि चलो ठीक है, अब promise हुआ है तो शादी कर ही लेते हैं. So I also made sure that I do whatever I could do to make this marriage happen, and I made sure that जितनी सारी चीजें करनी थी, I took that responsibility and I became the balancing act between the family. So one of the important thing which happened is that मैंने ये ensure किया था that I will personally go to meet everyone in Indore, and I will be the balancing act between both the families. And I would also say that actually Karan
really came through for me, and Karan was like कि मैंने जो लिटरली जो ऐसे प्रॉब्लम्स करी थी ना पहले, कि मैं नानी से नहीं मिलने गया था और मैंने मना कर दिया था एंड ऑल दैट, अब मैं वो सब करूँगा एंड विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ माई फैमिली करूँगा. तो ही वॉज लाइक ऑन अ मिशन कि वो आया इंदौर, वो मेरे पापा से मिला, मेरे साथ मेरी सारी एक्सटेंडेड, मतलब मेरी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, मम्मी की साइड, पापा की साइड. ही वॉज अलोन कमिंग विथ मी टू मीट ऑल ऑफ देम एंड ही वॉज पर्सनली टेलिंग ऑल ऑफ देम कि अब शादी है आना है, शादी है आना है. एंड आई वाज लाइक अरे भैया अभी तो कार्ड भी नहीं छपे हैं भाई. बट He's आई वाज like- एक्साइटेड राइट कि शादी हो रही है. और एंड ही वाज लाइक कि अब ये लड़की पीछे हट ही ना पाए, मतलब मैं इसके घर वालों को भी बता दूं कि शादी है, इसकी शादी हो गई है. ही So वाज that- लिटरली लाइक पीइंग अराउंड हिज टेरिटरी की ये पीइंग अराउंड टेरिटरी नहीं था, बेसिकली ये मेरा जाल था शो, दैट कि आई वाज. कन्फेस कर लिया मतलब तुमने. हाँ अभी जाल था, मतलब अब क्या, अब तो मेरी है, अब तो जाल नहीं, मतलब जाल में फंस चुकी है, शोर शादी हो चुकी है, इंसान। 6-7 साल हो चुके हैं, साथ में रह रही है, आज 10 साल से रिलेशनशिप अब तो चल बोल ही रहा सकता है, हूँ। अब तो बोल ही सकता हूँ. मारूंगी पकड़ के मैं. So yes, that was the time of our lives, and that's how we came out of the accident, by telling her that let's get married. So शोकी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अरे कितनी शिक्षा मिल गई, बहुत शिक्षा मिल गई है, कारण लाइफ में शिक्षा ही शिक्षा चल रही है. शिक्षा ये शो पूरी जिंदगी एक शिक्षा है, इट्स अ लर्निंग, करेक्ट, दैट्स व्हाई वी टेक बर्थ. बेसिकली मेरे को इस पूरी कहानी से ये शिक्षा मिली थी कि किसी भी लड़के को मौत के मुंह से बाहर नहीं निकाल के लेके आना चाहिए, भले वो तुम्हारा प्यार हो. क्योंकि फिर आप फंस जाते हो. फिर कितनी आप कुछ भी सेडिस्ट नहीं बोल इंसान है सकते. यार तू शो, कसम से, मतलब. बेसिकली मुझे इस कहानी से ये शिक्षा मिली थी कि when your loved one is in trouble and there are so many other stupid issues going on, like साथ में नहीं सोना है और लोग क्या कहेंगे टाइप ऑफ थिंग्स. So that came out to be my biggest learning at that point of time कि वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है. What matters is that Karan is okay. What matters is that the love of your life is better, is getting okay. And I have seen him suffer so much that उस point पे मेरे को सारी चीज़ें भूल गई थी कि मैंने इतना सब प्रॉब्लम झेला है फैमिली के साथ, कि मैंने फैमिली से बात नहीं करी है या जो भी कुछ करना था. तो मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई थी कि ठीक है, इसको मैं ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगी. पर जैसे ही वो ठीक हुआ और बाकी की सारी चीज़ें वापस से फोकस में आने लगी, पहले मेरा फोकस 1 पॉइंट फोकस करन था, और वो जब ठीक हुआ और बाकी सारी चीज़ें वापस आने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल यू दैट नो मीन्स नो. करेक्ट. like I constantly had this thing in my mind कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा. पर मैं वो बोल ही नहीं रही थी, एब्सोल्युटली. मैं वो बता ही नहीं रही थी कि क्या ये मैं कर पाऊंगी, या मैं करण को ये बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा थी कि क्या? तुमको एक अच्छी सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष लड़की बनना है. मतलब सारी लड़कियों को उस टाइम पे ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती थी कि तुमको इवेंचुअली एक अच्छी बहू बनना है. करेक्ट. लड़की तो ठीक है, इंडिपेंडेंट तो ठीक है, पैसे कमाना तो ठीक है, पर अच्छी बहू बनना है. तो मेरे अंदर ना बहुत बड़ी जद्दोजहद चल रही थी उस पॉइंट पे कि मेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, अच्छे पैसे कमा रही हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, फाइनली हम लोग वो सारी चीज़ों से उबर रहे हैं. या सारे लोन्स खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, करेक्ट. प्लस तुम्हारे लोन्स भी हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ. ट्रू. और वो सारी चीज़ों में मैं अपना पूरा इंडिपेंडेंस और सब कुछ छोड़ के एक ऐसी जगह पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ जहाँ पे मुझे ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम है हो चुके. या मतलब मेरे लिए ना वो घर में वो पॉजिटिव वाइब ही नहीं रह गई थी उस एब्सोल्युटली. रात के बाद कि नाउ यू कांट स्टे इन द सेम रूम बिकॉज लोग क्या कहेंगे. मेरे लिए ऐसा हो गया था कि
वो घर में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है, सारे मुद्दे ही हैं, सारे इश्यूज ही हैं. मैं वहाँ पे आती थी और मैं ना ऐसे चार्जड अप रहती थी फुल टाइम कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा. पर मैं ये सब कुछ तुमको बोल ही नहीं पा रही थी. Yeah, true, I remember. आई वॉज इन दैट डिलेमा कि एक तो करण अभी अभी ठीक हुआ है और वो इतना वो इतना एक्साइटेड है शादी को लेके. मैं फिर से ऐसे बाल्टी भर पानी लूँ और उसकी भावनाओं पे पानी फेंक दूँ, या फिर इवेंचुअली मुझे भी शादी तो करनी है किसी से. Yeah. तो Why not me? व्हाई नॉट करण, बिकॉज ऑब्वियसली फिर अंकल के वो मेरे कान में गूंजते थे कि तुम्हारे बीच में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता था कि मे बी करण एंड आई विल वर्क आउट, बट देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड आई शुड हैव कन्वेड दैट फीलिंग टू करण, व्हिच आई डिड नॉट. Yeah. सो दैट वाज माय बिगेस्ट शिक्षा फ्रॉम दिस होल कहानी. मेरी शिक्षा आई थिंक ये थी कि whatever happened with us, in the first place, if I would have woken up and taken the charge of my life, it would have been better, because it was more like after I took that decision of taking everything under my control, things became better. You know, when I say things became better, if you remember that in the first place we decided that we will come out of the Marwadi loan, and I was the one who took that decision. And after that, when we got married, correct, I left decision to my mom in that the raita happened, correct. And then now when I am talking about that, after my accident, I went to my mom and told her, and you know, कि क्यों किया आपने सब कुछ, and she came back to me with, you know, everything. If I would have been, you know, that person who goes and talk to my mom at that point of time and takes the full charge and takes the authority that कि ये ऐसे ही होगा, then things could have been different and we would have not suffered. And I'm really sorry that this thing happened, but I think life is all about learnings. So yes, this is one of my biggest learning from this episode. Yes. So we would like to once again thank you for being on this dramatic situations with us, where मतलब हम दोनों एपिसोड्स रिकॉर्ड करने के बाद इतने रोतले हो जाते ना, ऐसे हो जाते कि वो भाई साहब क्या क्या कर लिया हमने लाइफ में और क्या क्या देख लिया. Like there were actually episodes after which Karan has cried and I am hollowed in chest. I don't cry, but like I have been heavy कि oh god आवाज़ नहीं निकल रही, बात करने को नहीं हो रहा है. But thank you so much guys, we do all of this so that we can come together and identify our issues and apologize to each other, because apologies and gratitude have been a very big chunk of our relationship, and I think which has been making our relationship better and better. So thank you so much for helping us on this journey by being with us, listening to us and loving us. And remember that you are not alone in this. We are with you happily whatever after. Please do like, share and subscribe to us. We are available on all social media platforms under the name Happily Whatever After Pod. Thank you guys. See you soon. See you next week.